Bismillahirrahmanirrahim. Uh, we'll be starting our new topic, which is called negotiable instruments. It's a different topic from the topics that we were discussing in our last lectures. So, negotiable instruments, they're also known as commercial papers. So, what we are going to do is we are going to define what is a negotiable instrument, why do we need them. Then we are going to talk about different types of negotiable instruments. And then we are going to further talk about their importance and further subtypes of these negotiable instruments. So let's start. Now, starting from the history, uh, if you just imagine about centuries ago, when people used to travel from one place to the other place for the purpose of trade, initially there must have been some barter system or something in which people used to change goods with goods, exchange, in fact, goods with goods. And then, obviously, when currencies must have started, people must have started carrying currencies. But in those days, it was not very easy to carry currency, and the transport system was not such that you can securely transfer currency from one place to the other place. So I think this idea must have came into somebody's mind that why not we start writing a note or a kind of receipt or a kind of chit to endorse that some person will pay some amount of money to some other person. So instead of carrying cash from one place to the other place, because there were security issues and everything, so people started writing notes. The initial notes that people wrote to different people in the businesses, in the trades, were also called as IOU notes. IOU notes, that मैं किसी दूसरे बंदे को इतना पैसा मैंने पे करना है या ओ करना है. So it was a kind of, again, a contract between two or three people, जिसमें आप किसी दूसरे बंदे के लिए लिख देते थे कि मैं इतने पैसे तुम्हें दूंगा, और इफ यू आर कैरिंग दैट नोट, सो वो एक तो उसकी सिक्योरिटी हो सकती है, बिकॉज़ वो सिर्फ़ आपके नाम पे है और आप ही उस को इनकाश कर सकते हो। एंड इसी तरह बहुत सारे जो अदर रीज़न्स थे जिसकी वज़ह से लोग जो है करेंसीज़ कैरी नहीं कर सकते थे, उनके लिए आसानी होगी। इसीलिए हम इसको, अगर आप देखो तो कैश सब्स्टिट्यूट भी हमने लिखा हुआ है कि इसको हम कैश सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। इंस्टेड ऑफ कैरिंग अ लॉट ऑफ कैश विद you can carry a negotiable instrument. The modern or the current form that we are using, you can say, is a bank check. The check that we write to the bank or we give it to somebody is also a negotiable instrument. So आप imagine करो कि कितना easy है, for example, in Pakistani context, if you're carrying, for example, 5 crore rupees in some kind of deal or something. So वो कैरी करना बहुत मुश्किल है. It's going to be a lot of cash, और वो सिक्योर भी नहीं है. एंड कैश पे अगेन आपका नाम तो नहीं लिखा होता, तो कैश जिसके पास चला जाएगा वो यूज़ भी कर सकता है. सो बड़ी इनसिक्योरिटीज़ कैश के साथ इन्वॉल्व अभी भी हैं और पहले भी थी. सो इसका हल उन्होंने ये निकाला कि एक इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है फिलहाल यहाँ ये समझ लो कि एक एक डॉक्यूमेंट, एक पेपर, जिस पे कुछ चीज़ें सर्टेन ऑर्डर में लिखी होंगी जो हम पढ़ेंगे. अगर आप वो कैरी कर रहे हो तो इट्स वर्थ कैश. सो इट्स अ कैश सब्स्टिट्यूट. तो आजकल भी बहुत सारे बिजनेसेस में, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं. इनके फायदे नुकसान दोनों हैं, बट ज्यादा फायदे हैं, तो इसलिए इसके बारे में हमने मेनली आज देखना है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं.
Starting from the definition, the word negotiable means transferable, that it can be transferred from one person to the other person by delivery. And the word instrument means a written document by which a right is created in favor of some paper, in favor of some person. Sorry. So, अब क्या हो रहा है? देखो, जैसे हमने पहले लेक्चर्स में भी बात की कि हाउ डू यू से दैट यू आर अ ग्रेजुएट? How do you say that you've earned certain credit hours? When a person asks you, so what is the evidence that you're going to show to that person? That evidence is your transcript or your degree. So वो क्या करता है, वो आपका राइट क्रिएट कर देता है कि आपने इस यूनिवर्सिटी से इतने क्रेडिट आवर्स की डिग्री इस टाइम पे अर्न की हुई है. सो इट इज योर राइट टू कॉल योर सेल्फ दैट यू हैव डन अ बैचलर्स डिग्री और अ मास्टर्स डिग्री और अदर डिग्रीज. ऐसे ही अगर आप पहले भी मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि इफ यू आर लिविंग इन योर ओन हाउस जिसकी ओनरशिप आपके पास है, व्हाट इफ समबडी आस्क्स, you show them the letter, you show them the registry, you show them some other document. अब वो document जो है, that is the instrument that creates your right that you can call yourself the owner of that particular house or particular degree or something. So negotiable instrument ऐसे ऐसा पेपर, ऐसा नोट, ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप एक तो राइट क्रिएट कर सकते हो किसी दूसरे बंदे का, और दूसरा ये है कि इट इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी. फॉर एग्जांपल, इफ यू जस्ट पास ऑन दैट negotiable instrument to the other person, the right of encashing that note is transferred from you to the other person. तो जैसे ही आप, फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लैंक चेक है, ब्लैंक चेक का मतलब है कि उस पर किसी का नाम ना लिखा हो, वो हम एंड में जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बाकी उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हों, बट किसी के नाम पे ना हो. वो अगर आप किसी एक बंदे को ट्रांसफर करते हो, तो जितने पैसे आपने उसमें लिखे हुए हैं, अब वो जो पैसों का राइट है वो दूसरे बंदे पे ट्रांसफर हो जाता है कि वो पैसे उसकी ओनरशिप में चले जाते हैं, या उसके पास ये राइट होता है कि वो उसको इन कैश करा सकता है. सो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मेजर जो है मीनिंग वो ये बनता है. दस द टर्म निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिटरली मीन्स a written document which creates a right in favor of somebody and is freely transferable by delivery. So the moment you deliver negotiable instrument to the other person, the rights are transferred. Obviously with some exceptions, but what we are going to talk about towards the end, but ये transferable हैं. And further, a negotiable instrument is a piece of paper which entails a person to a certain sum of money and which is transferable from one to another person by the delivery or by endorsement and delivery. Endorsement जो थोड़ा बहुत यहाँ मैं आपको मीनिंग बता दूं, यहाँ हम किस तरह इसको यूज कर रहे हैं. इट इज यूजुअली बाय पुटिंग योर सिग्नेचर्स, by giving your consent. The evidence of your consent is that you're putting your unique signatures, और उससे वो उसको हम endorsement कह रहे हैं. But the simple idea that we want to get from this slide is that negotiable instruments are such papers that can be used as cash substitute, and instead of carrying cash you can carry this paper which worth the same, and it is also easily transferable. जैसे आप कैश भी एक बंदे से दूसरे बंदे को देते हो, ये भी transferable हैं. But please note that currency notes are also papers, but they are not negotiable instruments. They are not negotiable instruments. They are different. Negotiable instruments are not currency notes, but they are the notes that you can easily transfer from one person to the other person.
Now, basically, when we talk about these negotiable instruments, we have three types. The main negotiable instrument types are three. The first is known as promissory note. This one, promissory note. The second is known as bill of exchange. And the third is known as a check or an order to the bank. Now, if you just, we'll talk about all of them in detail, but the point that I want to make clear here is that these two have a lot of similarities. The bill of exchange and check, they are quite similar. Bill of exchange is also an order, check is also an order, but the only difference is then you order your bank to pay somebody, then it is a check. But if you order somebody else other than a bank, non-bank entity, then you are making a bill of exchange. We'll talk about these things in detail. Let's start with promissory note. Now, according to section 4, a promissory note is an instrument in writing, not being a bank note or currency note. As I've already told you, that currency notes and bank notes are not negotiable instruments. uh, Containing an unconditional undertaking without any condition. It's an undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. So it's not a very friendly definition, I say. But put it simply, it is a note that is made by one person known as a maker to another person who you can call payee, जिसमें वो क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है. एक्चुअली दिस इज द मेन वर्ड. जिस तरह हमने कॉन्ट्रैक्ट्स में भी पढ़ा, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आप प्रॉमिस ही कर रहे होते हो. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग अ प्रॉमिस. दिस मेकर इज मेकिंग अ प्रॉमिस टू द this payee that I will have to pay you this much amount of money, and then you obviously endorse it. And endorse का मतलब आप साइन भी करते हैं अपने, उसमें अमाउंट भी लिखते हैं, उसमें डेट भी लिखते हैं. So it is simply, for the sake of understanding, it is a paper in which one person is promising to the other person that I will have to give you some amount of money. So now this person, instead of carrying all the cash, if he has done some kind of trade or something with this person, instead of carrying cash, he or she can only carry that promissory note, and it has its legal value, legal consequences, and it is equal to a contract. But again, the importance is that instead of carrying your cash, a lot of cash, you just write promissory note to the other person. Now, if you just look at this, it is one of the examples of promissory notes. Now, you can see many things here. For example, this is a date that you're going to put. This is the amount in digits. This is the amount in words. Payable at National Bank building. Then here is the maker's signature, and this signature is a sign of endorsement. जब हम endorsement कहते हैं कि उसने endorse कर दिया है, if if this thing is a blank thing, it has no value. But if it is filled and endorsed by the maker, then it is a valuable thing, it is a legal thing. सो पेई कौन है इसमें, फर्स्ट नेशनल बैंक जो है वो पेई है. बैंक को प्रॉमिस कर रहा है एरिक गॉर्डन
कि इतने पैसे पे करेंगे। सो प्रोमिसरी नोट की ये एक एग्जांपल है, बट इसमें एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि देयर आर ओनली टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द promissory note. There are only two parties involved, one the maker, the second one is the payee. The maker is making a promise to the payee that he or she is going to give some amount of money to this person. Now, the second type is the bill of exchange. Now, bill of exchange, first we're just going to read about its definition and understanding. It is an unconditional order in writing addressed by one person to another, signed by a person giving it, means who's a maker, requiring a person to whom it is addressed to pay on demand or at a fixed or determinable future a sum certain in money to or to the order of or specified person or the bearer. ये कुछ चीजें हमें थोड़ी बहुत शायद कंफ्यूज करें। देखो, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें प्रोमिसरी नोट में भी आया बेरर का। बेरर मींस जो इसको होल्ड कर रहा होता है, जो भी इसको, हमने कहा ना ये ट्रांसफरेबल है। सो ट्रांसफरेबल का मतलब ये है कि अगर ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने सी को ट्रांसफर किया, सो अब जिसके पास वो, जो भी बेरर होगा, जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा, वो इंस्ट्रूमेंट का ओनर है, उसके पास वो राइट है। बिकॉज हम क्या कह रहे थे कि जैसे ही ये ट्रांसफर होता है, ये राइट भी ट्रांसफर कर देता है। सो इस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना, ये जो सारी ऊपर हम डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको समझने का सिंपल तरीका ये है कि लेट सपोज जो मेकर है, इसने कुछ ट्रेड की है पेई के साथ, किसी भी बंदे के साथ, एंड इंस्टेड ऑफ पेइंग हिम द कैश, इसने कहा मैं तुम्हें बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता हूं ताकि तुम अपनी ईज ईज पे उसको निकलवा भी सको एंड इजीली उसको जो है वो कैरी भी कर सको। बट द कैश इज नॉट विद द मेकर, इट्स नॉट विद हिम। द कैश ऑफ द मेकर होगा मेकर का ही कैश, बट इट इज विद समबडी एल्स, से एन अकाउंटेंट। आप फॉर एग्जाम्पल ये ग्रेन मार्केट्स और इनमें जाएं तो वो चिट आपको लिख के दे देते हैं, ऑर्डरिंग टू देयर फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट और अकाउंटेंट कि इस बंदे को इतने पैसे पे करते हैं। सो एक्चुअली मैकेनिज्म क्या हो रहा है, मेकर जो है वो ऑर्डर करता है एक थर्ड पर्सन को, ऑर्डर टू पे करता है थर्ड पर्सन को कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट तुम्हें कोई भी दिखाए तो उसको तुम इतने पैसे दे देना। सो ये क्या करता है, थर्ड पर्सन क्या करता है, पेज टू द पेई, ये पेई को पैसे पे कर देता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में इट हैज थ्री पार्टीज इन्वॉल्व, वन हु इज द मेकर, वन अ थर्ड पर्सन मे बी एन अकाउंटेंट और समबडी एल्स, एंड थर्ड इज द पेई जिसको पैसे मिलने चाहिए और मिलते हैं। इसकी ज्यादा क्लैरिटी हमें चेक को समझ के आएगी बिकॉज वो हम डेली लाइफ में उसको यूज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। उसके बाद वील कम बैक टू दिस बिल ऑफ एक्सचेंज। बट ये एक स्पेसिमन है जिसमें आपने क्या लिखा हुआ है, यू हैव गिवन द अमाउंट, प्लेस एंड डेट, कितने दिन के बाद वो वैलिड होगा या कब आपको पैसे मिल सकते हैं, ड्रॉर सिग्नेचर्स एंड जो भी ड्रॉई सिग्नेचर है, ड्रॉई और ड्रॉर्स का मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में करवा देता हूँ। सो यहाँ कोई ना कोई स्टैंप भी होती है अगर वो लगानी हो, बट देर आर डिफरेंट बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट्स। सो ये नहीं है कि आपको इसी पोजीशंस पे लिखना होता है, बट इंपॉर्टेंट इज कि ये सारी चीजें उसमें आपने मेंशन की हो।
Now, let's talk about the check and then we'll go back to our other negotiable instruments, which is especially bill of exchange, because we'll get some understanding from the check because this is a daily usage thing. Now, what is a check? A check is the means by which a person who has fund in the hands of a bank withdraws the same or some part of it. A check is a kind of bill of exchange, but it has additional qualification that it is always drawn on a specified banker. Now, look at this thing. This also has how many parties involved? One, two, three. And the same, the maker is ordering this third person whoever shows or has this document, you have to pay this amount of money to this person. But the only difference is that it is a non-bank, somebody else. It's not a bank. But when we talk about this check, now check has three parties involved, but this party is bank. So normally क्या हो रहा होता है, आप चेक लिख रहे होते हैं लेकिन आपके पैसे कहाँ होते हैं, वो ऑब्वियसली बैंक में पड़े होते हैं, बैंक में आप उसको डिपॉजिट कराते रहते हो. इट इज योर मनी बट इट इज इन द बैंक बिकॉज अगेन आपको भी तो सिक्योरिटी और सारे इश्यूज है ना, सो यू डोंट कीप योर कैश विद यू, सो योर बैंक कीप्स द कैश विद इट. बट होता क्या है कि ये मेकर जो है इसका अकाउंट होता है, अगर उसमें पैसे हों, देखो उसने कहा हु हैज फंड्स इन द हैंड ऑफ द बैंक. सो मेकर क्या करता है, वो चेक लिख के देता है पेई को. बट मैकेनिज्म क्या होता है, एक्चुअली वो ऑर्डर कर रहा होता है थ्रू दैट चेक, बैंक को ऑर्डर कर रहा होता है कि मेरे फंड्स में से पार्शली या होलली ये कुछ कम पैसे या सारे पैसे जो हैं वो इस पेई को आप दे दें जब भी ये आपके सामने चेक प्रेजेंट करे, या इस पेई को दे दें या जिस बंदे के पास भी वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो, आप उसको ये पैसे सारे जितने उस पर लिखे हुए हैं वो आप दे दें. सो अगेन, promissory note, two parties are involved. One person is making a promise to pay to the other person. Bill of exchange, three parties are involved, but the party जिसको मेकर ऑर्डर कर रहा है is a non-bank party, somebody else, maybe your personal accountant or somebody. But in the check, again there are three parties involved, but the main difference between bill of exchange and check is that this person is a bank. In the bill of exchange, this person is a non-bank. In the check, this person is a bank or a banker. So, अब देखो, if you again recall कि कितना आसान है कि अगर आपने किसी को 10 मिलियन का कैश देना है और 10 मिलियन का चेक देना है, the check will remain the same no matter how much amount of money you write on it. It is one simple paper. And if there are any issues or if it is stolen or lost or something, you can easily cancel it. The maker is simply going to tell the bank that I've written a check, but it is lost or it is not with the right person, so cancel it. And the moment if somebody else is going to go to the bank and ask them to pay the money, the bank is going to say the check is cancelled. You'll have to get the check again. So it makes the cash carrying part very, very easy. So instead of carrying a lot of cash, you're only carrying one check or one promissory note or one bill of exchange. So this is the main benefit of these negotiable instruments, that it is a cash substitute. So instead of carrying cash, you carry one small note, chit, which is known as negotiable instrument. So uh, there are no security in other issues. Now, this can be a simple example of check. Now, here we just have to do the
Differences of the payee, the drawer, and the drawee. Payee obviously is the person to whom you are giving this check. फॉर एग्जाम्पल जिस बंदे के भी पैसे आपने पे करने हैं या जिसका भी राइट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ही इज द पे, ही इज गोइंग टू claim the cash, he is going to claim the currency, he is going to claim कि ये negotiable instrument उसका है. So आपने क्या कर दिया, आपने उस कंपनी का नाम लिख दिया या आपने उस पर्सन का नाम इधर लिख दिया. यहां सिर्फ हमने पेई, ड्रॉई एंड ड्रॉर का डिफरेंस समझना है. विल टॉक अबाउट चेक्स इन मोर डिटेल इन लिटिल व्हाइल. सो पेई कौन है? जिस बंदे को पैसे मिल रहे हैं या जिसका राइट क्रिएट हो रहा है, जिसको आप चेक दे रहे हैं. ड्रॉर कौन है? जो बंदा चेक दे रहा है, यू कैन कॉल हिम और हर अ मेकर ऑफ दिस चेक. वो अपने साइन करके क्या कर रहा है? इंडोर्स कर रहा है. दिस इज द इंडोर्समेंट. एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि चेक कौन साइन करता है? जो बंदा, जिस बंदे के अकाउंट में पैसे होते हैं या जिस बंदे का अकाउंट होता है. सो जिस बंदे का बैंक में अकाउंट होता है, जब वो चेक लिखता है तो वो ड्रॉर कहलाता है. और ड्रॉर जो होता है वो एक्चुअली पे कर रहा होता है सम अमाउंट ऑफ मनी टू दी ड्रॉई. एक्चुअली ट्रांजैक्शन इन दो लोगों के दरमियान हो रही होती है, ड्रॉर एंड पेई के दरमियान. सो अब इसको वो ऑर्डर किसको करता है? मेकर ऑर्डर करता है ड्रॉई को कि इस बंदे को या जो भी इसका बेरर होगा उसको आप इतने पैसे मेरे अकाउंट में से दे दें. सो ड्रॉई आपका कौन होता है? इट इज द बैंक. इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज में आपका ड्रॉई कौन होता है? अ थर्ड पर्सन, अ नॉन बैंकर, मे बी योर ओन अकाउंटेंट, मे बी समबडी एल्स. सो ड्रॉर कौन है? ड्रॉर इज द मेकर, ड्रॉई इज द पर्सन टू whom order is being made, एंड पेई इज द पर्सन जिसको एक्चुअली वो पैसे पे होने होते हैं. सो these are these three terms that you need to understand. The rest of the lecture is all about the checks and its types and what we can do with checks and how check frauds are done and everything. So uh, let's talk about in further detail what is a check, what are its types, how do we use them, how do we keep ourselves safe from the banking fraud or something. So a check is a very common form of negotiable instrument. Most of us are using checks, which is the most used form of negotiable instrument right now. Uh, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यू नीड टू हैव सेविंग और करंट अकाउंट इन द बैंक in order to issue a check in your own name or in favor of others, thereby directing the bank to pay the predetermined amount to the individual named in the check or carrying it. सिंपल मतलब यह है कि आपका बैंक में अगर अकाउंट होना जरूरी है, इसके लिए अकाउंट के साथ आपका उसमें बैलेंस होना जरूरी है और उस बैलेंस में से पार्शली या फुली आप अपने लिए भी कैश निकलवा सकते हो, पैसे निकलवा सकते हो. आप किसी और को भी जो है वो चेक लिख के दे सकते हो कि वो कैश करवा ले. ना हो क्या रहा है? देखो, चेक आजकल के लिए चेक जो है वो बैंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं. चेक बुक जो है वो बैंक प्रोवाइड करता है, बिकॉज ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए. बिकॉज जिस बंदे के पास वो चेक बुक होगी, इसका मतलब ये है कि वो और उसका नाम और अकाउंट और वो सारी चीजें उसके ऊपर आजकल लिखी होती हैं. इवन 10 years ago उस पे अकाउंट नंबर वगैरह सारा कुछ प्रिंट नहीं होता था, हाथ से लिखते थे. लेकिन अब जो है वो सारा ऑटोमेटिकली सारा प्रिंट होके आता है. सो एवरी पर्सन एंड एवरी account has a different account number, has a different
checkbook. One checkbook of a particular account can only be used for that account. बिकॉज उसी में से पैसे निकलने होते हैं और उसी से बैंक को भी पता चलेगा कि हाँ ये ऑथेंटिकली उसी अकाउंट का और उसी बंदे का चेक है। मैकेनिज्म आपको ऑब्वियसली पता ही है क्या होता है। आप बैंक में सिक्योरिटी के लिए अपने पैसे रखवा देते हैं, उन पैसों में से आप पार्शली या फुली उनको आपके पास राइट होता है कि आप जब मर्जी उसको ड्रॉ कर लें। अब उसमें से जब आप अपने पैसे ड्रॉ कर रहे होते हो, आपका डिपॉजिट भी हो रहा होता है, आपका ड्रॉ भी हो रहा होता है। सो अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप अपना कैश, उतना कैश या उससे कम कैश निकलवा सकते हैं। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इसके बारे में थोड़ी सी हम एंड में मजीद बात करेंगे। दीज ट्रांजैक्शंस शुड बी हैंडल्ड वेरी डेलिकेटली बिकॉज इट मे लीड टू सम सीरियस बैंकिंग फ्रॉड्स। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा किस तरीके से फ्रॉड्स हो रहे होते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज उसमें होती हैं। बट it is a serious thing, especially for the bank and especially for the maker. तो मेनली आपका चेक जो है वो इस तरह ट्रांजैक्शन हो रही होती है एंड जब आपका चेक प्रेजेंट होता है बैंक में, ऑब्वियसली उसी टाइम उस पर डेबिट क्रेडिट डेबिट, अब अगर आप डिपॉजिट कर रहे होते हो तब भी ट्रांजैक्शन होती है, जब आप विड्रॉ कर रहे होते हो तब भी ट्रांजैक्शन होती है। सो डेबिट क्रेडिट्स होते रहते हैं जो प्लस माइनस होके जो भी एंड पे नेट आपका बैलेंस रह जाता है वो आपका बैलेंस होता है, जो आपका राइट होता है कि आप उसमें से किसी टाइम भी कैश ले लें। Now, it is one of the safest and convenient modes of making payments and is transferred by mere delivery. Obviously, हम इसके बारे में पहले भी बात करते आ रहे हैं कि instead of carrying a lot of cash, you just carry one negotiable instrument. So it is the safest way. फर्दर आप इसको किस तरह सेफ बना सकते हैं वो हम अभी जब टाइप्स ऑफ चेक्स की बात करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। नाउ वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द चेक इज दैट यू कैन ट्रांसफर अ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन विदाउट एनी हैसल which would be very difficult if hard cash was used instead. जो मैंने आपको बताया कि इट इज अ कैश सब्स्टिट्यूट। अगर हम चेक्स ना यूज करें और कैश हर टाइम कैरी करना पड़े तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। The issuer of the check has an account, saving or current, with the bank to which it is connected. उस बैंक का जो अकाउंट है उसमें या तो करंट या सेविंग होता है। करंट में ये होता है कि आपके प्रॉफिट्स वगैरह नहीं लग रहे होते, और जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें आपके प्रॉफिट्स लग रहे होते हैं, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट डिटेल है, ये किसी सेपरेट उसमें हम कभी डिस्कस करेंगे। बट सेविंग या करंट अकाउंट आपका जो है वो होना चाहिए। Now, some of the important things or the details which should be present in a check are as follows. जिस तरह हम कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेलिटीज की बात करते हैं एंड अदर लीगल रिलेशनशिप्स की फॉर्मेलिटीज की बात करते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि चेक में कौन सी चीजें जो हैं वो जरूरी हैं ताकि चेक जो है वैलिड हो और उसकी लीगल वैल्यू कोई ना कोई हो। खाली इफ यू आर जस्ट कैरिंग अ लीफ ऑफ फ्रॉम अ चेक बुक, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसमें ये सारी चीजें मेंशन्ड हों और प्रॉपर्ली मेंशन्ड हों जिस तरह रिक्वायर्ड है लीगली, फिर उसकी वैल्यू है। अ चेक शुड बी डेटेड। फर्स्ट थिंग, इट शुड बी डेटेड बिकॉज आगे जाके हम जब टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें इसको मजीद क्लियर करेंगे व्हाई डू वी नीड check to be dated. A check should mention the amount of money in figures and in words. A check must be signed by a person, drawer, issuing the check, which means endorsement होनी चाहिए, उसके sign होने चाहिए. A check must be drawn upon a specified bank, which is a drawee. तो बैंक obviously बैंक से ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। A check must have the name of the recipient payee of the check.
नाउ दिस वन इज ऑप्शनल, या आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आप नाम लिखना चाहें नाम भी लिख सकते हैं। वो टाइप्स ऑफ चेक्स में हम क्लियर करते हैं कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ इफ यू जस्ट लुक एट दिस सैंपल ऑफ दिस चेक, आपको यहां डेट मिल रही है, दैट यू हैव टू पुट अ डेट हियर। अगर आप थोड़ा सा क्लियरली इस लाइन को देखो, चले ऐसे करते हैं, ये बैंक का नाम लिखा हुआ है, ये उसका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, सपोज ये आपका चेक नंबर लिखा हुआ है, बिकॉज उसके जो अकाउंट की डिटेल्स हैं आजकल, तो बिकॉज सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर में ये डिटेल आपके अकाउंट के साथ मर्ज होगी। द मोमेंट यू आर गोइंग टू पुट दिस चेक नंबर इनटू द अकाउंट, इनटू द डेटाबेस, तो वो बता देगा कि ये किस अकाउंट के साथ कनेक्टेड है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको अगर कंप्लीटली देखें तो ये भी कुछ लिखा हुआ है और ये भी कुछ लिखा हुआ है और कुछ खाली जगह भी है इसमें। दिस इज द एम्प्टी स्पेस। इसमें क्या लिखा हुआ है? पे। और इसमें क्या लिखा हुआ है? और बेयरर। सो एक्चुअली this is where you are actually making the order to your bank that pay Mr. XYZ. So if you just write somebody's name here, for example ABC, this is the name of the payee that you can write here. So या तो अगर तो आपने ये नाम कुछ लिख दिया है, तो फिर तो आपने ऑर्डर किया है कि इस बंदे को पे कर दो, पे एबीसी। क्या चीज? अमाउंट इन वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज, एन अमाउंट इन फिगर्स एंड डिजिट्स हियर। अगर आपने किसी बंदे का नाम यहां नहीं लिखा और ये लाइन आपकी ब्लैंक है, तो देन द बैंक इज गोइंग टू कंसिडर और बेयरर। बेयरर क्या मतलब है? जो भी वो उसको होल्ड कर रहा हो, जिसके पास भी ये चेक होगा, उसको आप पे कर दें। क्या? जितना अमाउंट यहां लिखा हुआ है इन वर्ड्स एंड ऑब्वियसली इन फिगर्स, दोनों मैच भी करने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए, बिकॉज डिफरेंट हो तो आपका चेक जो है रिजेक्ट हो जाएगा। एंड देन इफ यू जस्ट लुक एट दिस, ये उस अकाउंट होल्डर का नाम लिखा हुआ है जिसका अकाउंट है, और ये जो है ये उसका, सपोज कर लो कि यही है, ये अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। एंड देन यहां एक जगह बनी हुई है बिल्कुल डिजिट के नीचे, थोड़ा बहुत फॉर्मेट में बहुत हल्का सा फर्क हो सकता है, तो उससे परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज कई दफा ये होता है कि ये चेक नंबर जो है ये इस तरफ लिखा होता है, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो यहां जो सिग्नेचर्स की जगह दी हुई है, दस्तखत या सिग्नेचर्स की जगह जो दी हुई है, यहां वो बंदा इंडोर्समेंट करता है। अगर ये सिग्नेचर नहीं हुए तो आपने जो भी फिल किया है उसका कोई फायदा नहीं है। अगेन सिग्नेचर्स भी वो होने चाहिए जो सिग्नेचर्स इस बंदे ने अकाउंट खुलवाते वक्त बैंक को स्पेसिमन दिया था, वो सिग्नेचर एग्जैक्टली होंगे तो काम चलेगा, अदरवाइज ये चेक आपका नहीं चलेगा। सो इसकी जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो जरा दोबारा देख लेते हैं। चेक मस्ट बी डेटेड, सो वेयर इज द डेट? हियर इज द डेट। चेक मस्ट बी डेटेड, here is where you can write the date on the check. Now money should be in figures and in words. So in figures ये आ गई आपके पास, in words ये वाली जगह आपके पास आ गई, यहां आप पैसे लिख देते हो। must be signed by the person who is making this check. Where are the signs? The signs are here. Must be drawn upon some specified bank. So where is the bank name? We have a clearly bank name of this bank here. And a check must have a name of the recipient if you want to make
the name of the recipient. So that name of the recipient is here in this blank line, pay or the bearer. So अगर आपने किसी का नाम लिखना है तो आप उसका नाम यहाँ लिख देंगे. So this is what a check looks like and this is how it should be filled. अगर इस चेक में कोई भी कटिंग हो, कटिंग मीन्स कोई आपने कुछ चीज लिखी है पहले और फिर उसको काट दिया है. अगर इस चेक में कोई और अदरवाइज इसकी फिजिकली इसमें कोई चेंज हो, फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से कट आया हुआ है, आधा चेक है नहीं या कुछ पोर्शन ऑफ चेक मिसिंग है, तो फिर डेफिनेटली आपको बैंक में जाके इश्यूज होते हैं कि ये प्रॉपर्ली आपको इन कैश नहीं आप कर सकते. और दूसरी बात यह है कि ये सारी चीजें होने के साथ साथ बहुत अच्छा भी चेक फिल हुआ हो, तो द मेन आइडिया इज दैट यू नीड टू हैव सम अमाउंट ऑफ मनी इन योर अकाउंट. अब जब जो भी बेरर होता है जिसके नाम पे भी ये चेक इशू किया होता है, वो जब बैंक में जाता है तो बैंक मेक श्योर कि एक तो ये सारी चीजें लीगैलिटीज फुलफिल हो रही हों, दूसरा ये है कि उस अकाउंट में पैसे हों, और अगर ये चेक कई दफा ज्यादा अमाउंट का हो जो कि वेरी करते रहते हैं, ज्यादा अमाउंट का हो तो आजकल वो कंफर्मेशन कॉल भी करते हैं. वो क्या करेंगे, ये जो अकाउंट होल्डर है इसको कॉल कर देंगे कि क्या आपने इस बंदे को इस नंबर का चेक जो है वो वाकई दिया है या नहीं. बिकॉज देखो चेक बुक कैन इजिली बी स्टोलन और उस पे हो सकता है सिग्नेचर्स भी कोई एक्सपर्ट हो तो आपके सिग्नेचर्स भी कॉपी कर ले अगर उसको आइडिया हो, और तो इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं. सो आजकल बैंक्स क्या करते हैं, इफ इट हैज अ लॉट ऑफ अमाउंट रिटन ऑन द चेक, तो वो आपको कॉल कर लेते हैं कि क्या आपने वाकई ये चेक जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू किया है या नहीं किया. सो ये आपको थोड़ा सा चेक के बारे में कुछ थोड़ी सी बेसिक चीजें जो है उनका पता होना चाहिए. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टाइप्स ऑफ चेक्स एंड उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेयरर चेक. बेयरर चेक का मतलब है that it is also known as open check or uncrossed check. Uncrossed हमें समझ आएगी जब क्रॉस को पढ़ेंगे तो फिर पता चल जाएगा, बट सिंपली अभी आप इसको ये ध्यान में रखो कि दिस इज एन ओपन चेक. दिस इज एन ओपन चेक. ओके, अभी मैं आपको थोड़ा सा इस पे चीजें बताता हूं जिससे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि ओपन चेक क्या है. दिस चेक कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी एंड नीड्स नो इंडोर्समेंट. इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली इंडोर्समेंट नहीं चाहिए. अब होगा क्या, देखो अगर आपने यहां किसी बंदे को स्पेसिफाई नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन आपने डेट, अमाउंट और यहां सिग्नेचर्स कर दिए हैं, बट किसी बंदे का नाम नहीं लिखा, तो बैंक क्या करेगा, बैंक ये वाली चीज की अजम्पशन लेगा कि जो बेरर है इस चेक का, वो बेरर जो है उसको पैसे देने हैं, वो इन कैश करा सकता है. सो अगर आपने किसी का नाम इधर नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि जिसके पास भी ये चेक होगा उसका राइट है कि वो इसको इन कैश करा सकता है बैंक से. दिस मीन्स यू हैव गिवन एन ओपन चेक, विच मीन्स वो सिंपली इफ यू जस्ट पास ऑन दिस चेक टू अनदर पर्सन, यू आर ऑल्सो पासिंग ऑन द राइट ऑफ दिस चेक और ऑफ दिस negotiable इंस्ट्रूमेंट. सो ये ओपन चेक है. It can easily be transferred from one person to the other person and from the other person to another person. So it can continuously be transferred from one person to the other person. And at the end, whoever is the bearer, whoever holds this check, is going to be having the right to encash it or convert it into currency or something. The more we will understand about these bearer checks when we'll study about other types. सेल्फ चेक. सेल्फ चेक का मतलब है कि सिंपली आप बैंक को ऑर्डर करते हो कि मुझे
आप मेरे अकाउंट में से इतने पैसे दे दें। अब देखो इसमें सिंपल आइडिया क्या है, कई दफा आपको खुद भी तो पैसे चाहिए होते हैं, तो इसमें इसमें क्या हो रहा है कि इसमें मेकर भी आप हो, पेई भी आप हो, बिकॉज आपका ही अकाउंट है और आप ही उसमें से पैसे ले रहे हो। द ओनली डिफरेंस इज कि जो थर्ड पार्टी है वो बैंक ही है, बैंक में आपके अपने पैसे पड़े हुए हैं। सो इट कम्स अंडर बेरर चेक, where instead of writing the name or account holder writes self to receive money physically from the branch where he holds the account। और आजकल तो ऑब्वियसली ये डिफरेंट ब्रांचेस जहां से मर्जी आप ऑनलाइन चेक कैश करवा लें। सो आप करते क्या हो, फॉर द रिकॉर्ड आप इसको सेल पे को अगर किसी का नाम लिखा हो तो ठीक है, उसको काट देते हो, और अगर आपके पास ब्लैंक इस तरह चेक है तो आप पे की आगे जो है वो सेल्फ ऐड कर देते हो। सो जस्ट बाय राइटिंग सेल्फ, यूजली कई दफा अगर आप चाहते हो कि सिर्फ सेल्फ पे रहे तो आप बेरर को काट देते हो, and then you obviously write something here, then you write something here, then you do your signatures and everything, but this is a check that you're writing to yourself. So what you're doing, you're making an order to the bank to pay you some amount of money or all the money that you have in your bank. So इस तरह के जो चेक्स हैं उसको सेल्फ चेक्स कह देते हैं। बेरर बेरर चेक्स क्या थे, जिसके पास भी वो चेक होगा वो उसको इन कैश करा सकता है। सेल्फ चेक क्या है, मैं सिर्फ कैश करवा सकता हूं जिसका अकाउंट है। सो ये एक टाइप है। देन वी हैव द अकाउंट पेई चेक्स। नाउ दिस इज अ लिटिल technical and also important to understand. Accounts payee checks. A bearer check becomes an account payee check by writing account payee or crossing it twice with two parallel lines on the left hand side top corner। अब आप कभी अगर अपनी लाइफ में चेक्स देखो तो उस पे यूजुअली यहाँ यहाँ तो कुछ स्टैंप लगी होती है, या यहाँ आप अपने पेन से भी दो लाइनों से क्रॉस कर देते हो। कई लोगों ने यहाँ अकाउंट्स पे ही पूरा लिखा होता है, अकाउंट्स पे ही पूरा लिखा होता है। कई लोग सिर्फ इसको, अगर आप नहीं भी लिखते तो ऐसा इशू नहीं है, यू जस्ट नीड टू क्रॉस इट। इफ यू जस्ट क्रॉस इट, इट बिकम्स एन अकाउंट पेई चेक। अब इसका फायदा क्या है, द अकाउंट पेई चेक अगर आपने ये क्रॉस कर दिया है तो कोई भी बंदा इसको कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकता। इफ आई हैव गिवन दिस account pay check to somebody, that somebody cannot go to cannot go to the bank and ask them for the cash। वो अकाउंट में जाएगा, पैसे उसको मिल सकते हैं, बट द मैकेनिज्म ऑफ गेटिंग दिस अमाउंट इज नॉट गोइंग टू बी कैश। होगा क्या, जो जिस बंदे के पास भी ये जो पेई है, अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट में जो भी अमाउंट यहां लिखी हुई है उसको एक बंदे के अकाउंट से दूसरे बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, एंड देन अपने अकाउंट से जैसे मर्जी उसको यूज कर ले। देखो, एक नॉर्मल चेक अगर आप लेके जाते हो, बेरर चेक या सेल्फ चेक, आप काउंटर पे सबमिट कराते हो, लेट्स से 50,000 रुपीज, एंड वो आपको 50,000 रुपीज कैश में करेंसी नोट्स में दे देता है, आप वापस आ जाते हैं, खत्म कहानी। बट इफ इट इज एन अकाउंट पे ई चेक, तो इसका मतलब ये है कि आप वो 50,000 रुपीज का जो चेक विच इज क्रॉस्ड फ्रॉम हियर, अगर आप वो लेके जाते हो तो बैंक इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी कैश। बैंक क्या करेगा, इफ यू हैव एन अकाउंट इन दैट बैंक, और अगर किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है, जैसे भी है, आपके ये 50,000 रुपीज या जो भी अमाउंट चेक पे लिखी हुई है, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू योर अकाउंट, एंड उस अकाउंट में से फिर जैसे भी आपने यूज करने हैं वो आप यूज कर सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अब देखें इसका फायदा क्या है।
अगर मेरा ओपन चेक हो, किसी भी बंदे के हाथ वो लग जाए और वो बैंक जाए, तो वो बेरर है, बैंक उसको पैसे दे देगा। देयर इज गोइंग टू बी नो रिकॉर्ड कि वो पैसे, ऑब्वियसली वो साइन वगैरह करवाते हैं आपसे, आजकल ज्यादा अमाउंट हो तो आईडी कार्ड भी लेते हैं, बट स्टिल इट इज नॉट वेरी ऑथेंटिक एविडेंस, नॉट वेरी ऑथेंटिक रिकॉर्ड कि वो कहाँ गए वो पैसे जो आपने इस पे लिख के दिए थे चेक पे। बट इफ यू मेक इट अकाउंट पे ही चेक, तो सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की अकाउंट में ही ट्रांसफर होंगे जिसका लीगल रिकॉर्ड बैंक के साथ फॉर लाइफ रहेगा। रेफरेंस नंबर होता है, डेट होती है, टाइम होता है, और किस अकाउंट में कितने कब पैसे किस अकाउंट से गए, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। अब क्या होता है, अगर आप किसी बंदे को खाली एक चेक दे देते हो, ओपन चेक, और वो कैश करा लेता है, या वो किसी को आगे फर्दर पास ऑन कर देता है, या वो कहता है गुम हो गया है और कोई और कैश करवा लेता है, तो आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते, ऑथेंटिकली क्लेम नहीं कर सकते कि आपने इस बंदे को ये पैसे दिए हुए हैं। बट इफ इट इज एन अकाउंट पे ही चेक, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात यह है कि नाउ इट इज एन एविडेंस विच इज एडमिसिबल इन द कोर्ट कि आपने वाकई ही इस बंदे को इतने पैसे जो हैं वो दिए हैं, बिकॉज नाउ द बैंक हैज ट्रांसफर्ड द सम अमाउंट ऑफ मनी टू द अकाउंट ऑफ द अदर पर्सन। सो ये इसका बहुत फायदा है। सो वेन एवर यू हैव इवन अ लिटिल डाउट कि दूसरा बंदा मुकर जाएगा या कोई ऐसा इशू हो सकता है, तो गिव देम द अकाउंट पे ही चेक, क्रॉस कर दें उसको साइड से, ताकि वो अब पैसे जो हैं जमा ना हो सकें। The amount will be transferred to the account of the person specified on the check. It is considered the safest type of checks and is also known as cross check. इसको हम क्रॉस चेक भी कहते हैं, इसको सेपरेटली भी पढ़ेंगे। सो अकाउंट पे ही चेक जो है, दैट इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ चेक जो आप किसी को पेमेंट करते वक्त दे सकते हैं। वील टॉक अबाउट क्रॉस चेक इन लिटिल बिट मोर डिटेल, बट उससे पहले बाकी टाइप्स हम जरा पढ़ लें। पोस्ट डेटेड चेक्स। पोस्ट डेटेड चेक्स क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस्ड और अकाउंट्स पेई चेक, बट it is post dated to meet the obligation at a future date. It is valid from the date of the issue up to 3 months. अब इसमें क्या होता है, पोस्ट डेटेड आप चेक्स दे देते हैं, जिसमें मेनली क्या डिफरेंस होता है? मेनली डिफरेंस ये होता है कि आपने यहाँ डेट लिखी होती है, जो फॉर एग्जांपल if you uh, if we are talking in about this lecture in January, for example, I want to write a check today, and today is, let's suppose, 1st January, but somehow or because of certain reasons, I do not give, I do not want to give the money to that person till, let's say, March, March 15th. तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ 16 मार्च लिख दूंगा, ताकि उससे पहले ये कैश ना करा सके, उससे पहले ये ट्रांसफर ना करा चुके। तो मैं यहाँ 16 मार्च जो है वो मेंशन कर दूंगा। दैट इज गोइंग टू मेक माय चेक पोस्ट डेटेड, के बाद की डेट का आपको चेक मिल जाता है। अब 16 मार्च से पहले ये इन कैश या ट्रांसफर या कुछ भी नहीं हो सकता। कई दफा ये भी रीजन होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे, इफ आई वांट टू पे समबडी 100,000 रुपीज, मेरे अकाउंट में है ही नहीं 100,000, बट मुझे ये पता है कि फॉर एग्जांपल सैलरी आएगी, पैसे आएंगे, कुछ ऐसी चीज होगी, तो बाय बाय फॉर एग्जांपल 15 मार्च आई विल हैव 100,000 रुपीज इन माय बैंक अकाउंट। तो मैं फिर इस वजह से भी कई दफा पोस्ट डेटेड चेक लिख देता हूँ कि उससे पहले कोई बंदा प्रेजेंट ना करे, और जब तक मेरे पैसे आ जाएंगे तब तक ये डेट भी आ जाएगी, और तब तक ये इन कैश हो सकता है। सो आप क्या करते हैं, फ्यूचर डेट का चेक दे देते हैं। इसमें यह भी होता है कि फॉर एग्जांपल आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है किसी चीज की। फॉर एग्जांपल इफ आई गेट अ कार फ्रॉम सम कंपनी जो मुझे इंस्टॉलमेंट पे वो कार दे रही है, और मैंने उसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स देनी है, फॉर एग्जांपल 12 मंथ्स के लिए।
तो इंस्टेड ऑफ पेइंग दैट इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ, उस हैसल से बचने के लिए मैं उस कंपनी को पोस्ट डेटेड चेक्स दे देता हूँ हर महीने के लिख के। तो जब भी वो अमाउंट जो ड्यू होता है, जब भी वो ड्यू डेट आती है, वो सिंपली उसमें से वो वाला चेक निकालते हैं और अपनी पेमेंट ले लेते हैं। नेक्स्ट मंथ अगेन वो क्लियरेंस के लिए भेज देते हैं। सो पोस्ट डेटेड चेक्स मुझे ये फायदा देते हैं कि अगर मैं आज किसी को पैसे नहीं देना चाह रहा और मैं किसी फ्यूचर डेट पे उसको पैसे देना चाह रहा हूँ, तो वो जो फ्यूचर डेट है उसके बाद उसको पैसे मिल सकते हैं। तो उसको क्या करना है, उसको आपने डेट पे जरा केयरफुल रहना है कि डेट क्या लिख रहे हैं, बिकॉज डेट से पहले आपका चेक जो है वो इन कैश या ट्रांसफर नहीं हो सकता। उसके बाद ऑब्वियसली हो सकता है, उस पर हम मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह। नाउ अनदर टाइप इज द क्रॉस्ड चेक टाइप। अगेन वही बात जो हम कर चुके हैं पहले कि if we cross a bearer check twice with two parallel lines on the left hand top corner, it becomes a cross check. Only the name written on it can get the amount transferred to his account. So cross check and accounts pay check, आप समझ लो एक ही चीज है. Again, if you just put two lines here, now this check cannot be encashed. This check can only be, the amount that is mentioned in this check can only be transferred to the account of the payee, but not cannot be encashed. कैश नहीं मिलेगा आपके उसमें अकाउंट में ही डिपॉजिट होगी। अब इसमें फर्दर आप क्या कर सकते हैं, फर्दर इसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं। नाउ सपोज अगर मैंने ये क्रॉस कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ किसी अकाउंट में ही जमा होगा। बट इसमें अभी भी थोड़ी सी बात यह है, किसके अकाउंट में जमा होगा। इफ आई लीव दिस थिंग ब्लैंक, तो फिर ये बेरर के अकाउंट में जमा हो सकता है। अब ये कैश तो किसी को नहीं मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। बाय पुटिंग दीज टू पैरेलल लाइंस, कैश नहीं मिलेगा बैंक से, अकाउंट में ही जमा होगा, अकाउंट्स पे ही है। बट किसके अकाउंट में जमा हो सकता है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस क्रॉस चेक फर्दर सिक्योर, आप क्या करते हैं, आपने दो लाइनें लगाई और आपने कहा जी ये तो हो गया क्रॉस चेक, और यहां आप अकाउंट्स पे ही लिख दें या ना लिखें, लेकिन स्टिल आप दो लाइनें लगाने से ही ये अकाउंट पे ही या क्रॉस चेक हो जाता है। नाउ अगर मैं यहां किसी का नाम मेंशन कर देता हूं, एक्स वाई जी फॉर एग्जाम्पल मेंशन कर देता हूं, या कोई भी और नाम मेंशन कर देता हूं, तो इसका मतलब ये है कि अब ये सिर्फ और सिर्फ इस बंदे के अकाउंट में जमा हो सकता है। तो फर्दर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि किसी और के अकाउंट में जमा भी नहीं हो सकता। अगर आप नाम नहीं लिखते तो फिर बेरर कोई भी हो सकता है और उसके अकाउंट में जमा हो सकता है। इस पे मजीद जरा एक और चीज देखें, वी कैन ऑल्सो राइट अ चेक जो कि क्रॉस्ड हो, स्पेसिफिक हो एंड पोस्ट डेटेड हो। हम डेट उसकी जब मर्जी लिखते हैं, हमारी मर्जी है, हम जिसके मर्जी नाम लिखते हैं हमारी मर्जी है, और हम इसको क्रॉस करें या ना करें हमारी मर्जी है। सो बताने का मकसद और मेन आइडिया टू अंडरस्टैंड दीज टाइप्स ऑफ चेक्स इज दैट यू नीड टू कीप योर ट्रांजैक्शन वेरी वेरी सिक्योर and also legal. So if in future you need any evidence that you have given somebody some money, you have these evidences of crossed or accounts pay checks, और जो बैंक है वो आपको प्रॉपर इसका एविडेंस देगा कि इस रेफरेंस नंबर से हमने इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। सो मजीद इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसकी एक फोटो कॉपी भी अपने पास रख सकते हो। अदरवाइज तो बैंक के पास रिकॉर्ड होता है, बट जस्ट कीप अ रिकॉर्ड कि इस चेक नंबर से आपने इस बंदे को इतने पैसे दिए हैं। इसमें एक और चीज भी होती है, इफ यू लुक एट अ चेक बुक इज समथिंग लाइक दिस। देयर इज एन extended paper attached to this checkbook, and here is the binding. Here you have the binding, and there is uh, a small paper attached with this check. You tear it from here,
This paper, I don't think nowadays people use it, but this paper can also be used to keep a record कि आप, because उसमें क्या होता है, उसमें चेक नंबर यहाँ भी लिखा होता है, चेक नंबर सेम जिस लीफ को आप फिल कर रहे हो। सो यहाँ आप यहाँ भी रिकॉर्ड रख सकते हो कि कितना अमाउंट है, किस लिए दिया है और किस बंदे को दिया है। तो दैट वे आपके पास एक मैनुअल रिकॉर्ड भी रहता है कि इस चेक बुक से इस पर्टिकुलर चेक को मैंने बंदे के नाम पे दिया है। वो अकाउंट्स पे ही था, वो क्रॉस चेक था, वो स्पेसिफिक चेक था, ओपन चेक था, बेयरर चेक था। वो सारी डिटेल्स अगर आप यहाँ अपने पास रख लें तो वो भी आपको बाद में काम आ सकती है। बट आइडिया इज दैट if you're making a transaction which is doubtful or for which you might need some evidence in the future, तो कोशिश करें कि वो अकाउंट्स पे ही या क्रॉस चेक ही यूज करें, बिकॉज बाद में आपको अगर एविडेंस की जरूरत पड़ती है तो ये आपके काम आ जाएगा। नाउ देयर आर फ्यू मोर थिंग्स अबाउट द चेक। पहली बात है कि इसकी जो मेच्योरिटी है वो कितनी होती है। मेच्योरिटी का मतलब है कि चेक पे जो डेट लिखी हुई होगी, यहाँ जो भी डेट लिखी होगी, से आपने लिखा है यहाँ 15 फरवरी, सो 15 फरवरी जो है 2000 फॉर एग्जाम्पल 21 लिख दिया इसमें आपने, तो 15 फरवरी 2021 को इस चेक की जो डेट है वो स्टार्ट होगी। एंड होगा क्या कि 180 डेज के अंदर अंदर अगर इसको आप इन कैश करा लेते हैं या आप इसको ट्रांसफर करा लेते हैं अपने अकाउंट में या जो भी है, तब तक तो ये कैश हो सकता है। बट इफ इट गोज बियॉन्ड 180 days, we don't say 6 months or 3 months, we just say 180 days। 180 days से अगर ये ज्यादा क्रॉस हो जाती है डेट, तो देन इट मीन्स कि ये अब दोबारा इन कैश नहीं हो सकता। सो इसका जो मेच्योरिटी टाइम है, उसके बाद अगर आप इसको इन कैश कराने की कोशिश करते हैं या ट्रांसफर कराने की कोशिश करते हैं, तो ये एक किस्म का इनवैलिड चेक हो जाता है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप दोबारा उस मेकर के पास जाएं, वो मेकर उस पर डेट चेंज करके साइन कर दे, तो देन इट इज पॉसिबल द सेम चेक कैन बी प्रेजेंटेड अगेन। अब इस पे एक और जो टर्म यूजुअली यूज होती है, दैट इज डिसओनर ऑफ चेक। समटाइम्स इफ यू जस्ट गो टू अ बैंक, प्रेजेंट अ चेक, तो हो सकता है कि आपको बैंक कहे कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, जिस अकाउंट का वो चेक है उसके पैसे नहीं है, और वो डिसऑनर कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, ना ही आपके बैंक में ट्रांसफर हो सकते हैं। सो डिसऑनर ऑफ चेक हो सकता है ड्यू टू मेनी रीजंस। मेनली जो रीजन होता है कि आपके उस अकाउंट में अगर पैसे ही ना हो बैंक के पास, तो बैंक आपका चेक जो है उसको रिजेक्ट कर देता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर उसमें सिग्नेचर्स मैच ना कर रहे हो, तब भी वो चीज जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है। फिर हो सकता है कोई बैंक में आप उसमें कटिंग कर दी हो, यहाँ लिखते वक्त कोई कटिंग हो गई हो, वर्ड्स में अमाउंट लिखते वक्त गलती हो गई हो, फिगर्स में कुछ लिखते हुए गलती हो गई हो। समटाइम्स फिगर्स एंड वर्ड्स डू नॉट मैच, यहाँ आपने 1 लाख लिखा है, फिगर्स में आपने 2 लाख लिख दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द सिग्नेचर्स डोंट मैच। और अगर किसी बैंक अकाउंट होल्डर ने वो चेकबुक कैंसिल करवा दी है, फॉर एग्जांपल कि चेकबुक गुम हो गई है, तो इसको कैंसिल कर दें, और वो ये सारे चेकबुक नंबर्स जो हैं ये सब कैंसिल हो गए हैं, और आपको मिल गया या बाद में याद आया तो आप वो लेके गए हैं, वो भी नहीं होगा। या आपकी डेट का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो निकल गया हुआ है। सो बहुत सारे केसेस में जो है वो आपका चेक जो है वो डिसओनर हो जाता है। डिसओनर होता है जब आपका चेक, तो बैंक एक्चुअली क्या करता है, बैंक आपके चेक के साथ एक अ, एक प्रोफार्मा, एक फॉर्म, एक चेक लिस्ट टाइप चीज लगाता है, जिसमें मल्टीपल रीजंस लिखे होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस लिखी होती हैं कि किस वजह से डिसऑनर हुआ चेक। उसमें से फिर जो एक्चुअल रीजन हो जिसकी वजह से डिसऑनर हो रहा है चेक, उसको वो टिक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव फॉर एग्जाम्पल 1 2 3
4 5 ऑप्शंस। ये ऑप्शन है कि डेट एक्सपायर हो गई है, ये ऑप्शन है कि अकाउंट में पैसे नहीं है, ये है कि चेक की हालत ठीक नहीं है, ये सिग्नेचर मैच नहीं करे, ये है कि कैंसिल हो गया है। सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू टेक वन रीजन कि जी अकाउंट में पैसे नहीं है, ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट इन द अकाउंट, आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है। बहुत सारे लोग जो बैंक जो चेक के फ्रॉड्स होते हैं वो करते हैं, और बहुत सारे लोग इसमें फ्रॉड में आ भी जाते हैं। वाई? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के साथ बिजनेस किया है, वो कहता है कैश नहीं है मेरे पास, मैं आपको 5 दिन बाद का चेक दे देता हूँ, मेरे इतने पैसे फलानी जगह से आने हैं, तो आप प्लीज तब इसको इन कैश करा लीजिएगा। तो यूजुअली हम कहते हैं हाँ ठीक है, अगर उसने हमें चेक दे दिया है तो इट इज फाइन। अब चेक दे दिया है, हम तो तसल्ली में आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हो सकता है आपके साथ बंदा फ्रॉड कर रहा हो सकता है उसका अकाउंट अपना ना हो, किसी और का आपको चेक दे दे, हो सकता है कि उसके अकाउंट में इतने पैसे ही ना हो जितने का आपको चेक लिख के दे रहा है, हो सकता है उसके अकाउंट में पैसे आने हों लेकिन वो ना आए, तो फिर आपको बाद में तंग भी कर सकता है कि अभी पैसे आ रहे हैं, अभी पैसे नहीं है, कोई भी ऐसी चीजें जो हैं। सो ये बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जो चेक्स के फ्रॉड्स होते हैं, बिकॉज जो पेई होता है जिसको वो चेक मिल रहा होता है वो तो तसल्ली में आ जाता है कि हाँ पैसे मिल जाएंगे, मैं बैंक में जाऊंगा, बैंक में कैश करा लूंगा। बट बहुत सारे लोग इसको यूज करते हुए उस टाइम अपनी जान छुड़वा लेते हैं और आपके साथ एक्चुअली फ्रॉड कर रहे होते हैं। ना उनके अकाउंट में कोई पैसा होता है और ना उनकी शायद इंटेंशंस होती हैं आपको पैसा देने की। सो इन फ्रॉड से अपने आप को बड़ा केयरफुल रखना है। जब किसी से चेक रिसीव करना है वो भी नहीं ठीक, बिकॉज कैश हो या फिर चेक रिसीव करना है तो कोई ट्रांजैक्शन करने से पहले उस चेक को जाके इन कैश करा लें या ट्रांसफर करा लें, ताकि बाद में आपको इश्यूज ना हो। अगर डिसओनर हो जाता है तो वो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। अब whenever the check is dishonored, the drawee bank instantly issues a check return memo, जिसका मैं आपको नोट का बता रहा था ना, it is known as check return memo to the payee banker specifying the reason of dishonor। किस वजह से वो चेक जो है वो डिसऑनर हुआ है, उसका रीजन उस पे, जैसे मैंने आपको बताया, मल्टीपल रीजंस लिखे होते हैं, एक दो या जो भी रीजंस है वो टिक कर देता है कि इसकी वजह से आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है। सो ऐसे फ्रॉड्स बहुत ज्यादा होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं सब कुछ, जिसको देखते हुए अबाउट सर्टेन इयर्स बैक ये जो बैंक का फ्रॉड है चेक के थ्रू, कि आप किसी को चेक दे देते हैं लेकिन आपकी नीयत नहीं होती उसको पैसे देने की। सो अगर आपने कोई ऐसा काम किया है कि आपने किसी बंदे को किसी ट्रांजैक्शन में चेक दिया है और उसका चेक जो है इन कैश नहीं हो रहा या ट्रांसफर नहीं हो रहे उसमें से पैसे, और ये कैश मेमो जो है, चेक रिटर्न मेमो जो है, ये अगर वो ले जाता है और एफआईआर करवा देता है कि इस बंदे ने मेरे साथ चेक के थ्रू फ्रॉड किया है, इसकी नीयत नहीं थी मुझे पैसे देने की लेकिन स्टिल इसने मुझे चेक दे दिया है। सो ये जो ऑफेंस है, जो चार्जेस आप पे लगते हैं, एक तो क्रिमिनल चार्जेस और फ्रॉड लगते हैं, और दूसरा ये है कि चेक का डिसऑनर होना बिकम्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसका मतलब है कि ये इस ऑफेंस में आपकी बेल नहीं होती, आपको वो ट्रांजैक्शन सेटल करनी पड़ती है इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, और कोई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तभी बेल हो सकती है। आपकी बेल भी नहीं हो सकती अगर आपने खुदा ना खास्ता किसी को ऐसे फ्रॉड से चेक दे दिया है जो उसने इन कैश नहीं करा सके। सो हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि जब भी हम चेक्स किसी को दे रहे हों या उससे रिसीव कर रहे हों, वी नीड टू बी हैविंग दीज थिंग्स इन माइंड कि ये इस तरह के फ्रॉड्स पॉसिबल हैं। यूजुअली क्या होता है कि आप जब एक दफ़ा जाते हो बैंक में, तो अगर वो चेक जो है उसमें पैसे नहीं है, आप एक दफ़ा उनसे चेक रिटर्न मेमो लेते हो, उस पर लिखा होता है कि जी ये रीज़न था, इसकी वजह से हमने
इसको चेक को डिसऑनर कर दिया है और साथ वो डेट और स्टैंप और सारी चीजें मेंशन कर देते हैं। यू वेट फॉर 1 to 2 days एंड देन यू गो बैक टू द सेम बैंक, दोबारा प्रेजेंट करते हैं कि हो सकता है अब उसने करवा दिया हो। यूजुअली इट इज बेटर कि आप उसको नोटिस दे दें कि मैंने आपका चेक जमा करवाया है लेकिन वो डिसऑनर हो गया है, और मे बी दैट पर्सन इज गोइंग टू गिव यू अनदर डेट और समथिंग। गो टू द बैंक अगेन एंड एक और कैश मेमो दें या उसी कैश मेमो पे दोबारा लिख दें कि ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट और जो भी रीजन है द चेक इज बीइंग डिसऑनर्ड। या कई दफा पुरानी चेक बुक्स आपके पास पड़ी होती हैं, अकाउंट्स बंद हो चुके होते हैं, डोरमेंट हो चुके होते हैं। सो इट इज बेटर दैट यू कलेक्ट 2 चेक रिटर्न मेमोज ताकि फर्दर श्योरिटी हो जाए कि हाँ इस बंदे की वाकई नीयत में कोई प्रॉब्लम है, नोटिस देने के बाद भी हमारा चेक जो है वो इन कैश या ट्रांसफर नहीं हो सका। तो इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसमें बेल नहीं होती। यूजुअली फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ 50,000 का चेक और वो डिसऑनर हो गया और एफआईआर हो गई है तो आपको 50,000 शायद कोर्ट के सामने पहले सेटल करना पड़े, फिर आपकी बेल होगी या फिर आपकी जान छूटेगी, अदरवाइज आपको फ्रॉड के चार्जेस में नॉन बेलेबल ऑफेंस आपके ऊपर लग सकता है। सो ये मेनली चेक्स के बारे में हमारी सारी चीजें हैं। सो लेट्स रिवाइज इट अ लिटिल। वी स्टार्टेड विद the name negotiable instruments. Then we talked about that these are also known as commercial papers. And then we talked about its history that many centuries ago, people used to, when trade with each other, तो उनको बार्टर सिस्टम के बाद जब करेंसीज आई तो करेंसीज कैरी करना पड़ती थी, which was not secure and which was not possible at that time, not even today. So instead of carrying huge amount of cash or currency, people started using this cash substitute, which is negotiable instrument. So negotiable instrument है क्या? हमने कहा they are simply notes जिन पे एक बंदा मेकर जो है वो दूसरे को लिख के दे देता है कि मैंने इतने पैसे तुम्हें पे करने हैं, एंड इट इज इजीली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। एंड निगोशिएबल का मतलब है कि इजीली ट्रांसफरेबल है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि ये राइट क्रिएट कर देता है बेरर के, जिसके पास भी ये हो या जिसका भी नाम उस पर लिखा हुआ हो, वो ये क्लेम कर सकता है कि इतने पैसे जो हैं वो मेरे पास हैं या इतने पैसे मुझे मिलने हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट इट्स मेन टाइप्स, हमने कहा कि प्रोमिसरी नोट्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है एंड देन चेक है। एंड हमने कहा कि इसमें मेन जो डिफरेंस है बिटवीन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ चेक इज कि बिल ऑफ एक्सचेंज में आप ऑर्डर करते हो नॉन बैंक को, चेक में आप ऑर्डर करते हो किसी पर्टिकुलर बैंक को टू पे द मनी। देन वी टॉक्ड अबाउट दीज प्रोमिसरी नोट्स, हमने कहा इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, मेकर एंड द पेई। मेकर प्रॉमिस करता है विद द पेई कि इतने पैसे मैंने तुम्हें पे करने हैं। देन हमने इसकी सैंपल की बात की कि इस तरह इसका सैंपल है जिसमें पेई अपने सिग्नेचर्स करता है, सिग्नेचर करने का मतलब है वो इंडोर्स करता है कि मैं वाकई प्रॉमिस कर रहा हूँ, एंड देन पेई जो है उसके नाम पे लिख देता है, अमाउंट यहाँ लिखा होता है, डेट लिखी होती है एंड बाकी फॉर्मेलिटीज जो हैं वो सारी, प्लेस एंड एवरीथिंग इज रिटन। Then we majorly talked about this bill of exchange and the difference between check and bill of exchange, that one person when makes an order to a third person to pay some amount of money which is mentioned in the instrument to this payee, this is known as bill of exchange. But bill of exchange and check में जो major difference है, both of them have three parties: maker, the payee, and the third person. So here the maker and the payee, but the third party is the bank. तो चेक जो है वो सिर्फ बैंक के लिए लिखे जाते हैं, बैंक को मेकर ऑर्डर करता है कि आप इस बंदे को या बेरर को जो भी अमाउंट इस पे मेंशन्ड है वो पे कर दें। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ड्रॉअर, द ड्रॉई एंड द पेई। सो ड्रॉअर कौन है? जिसका अकाउंट होता है बैंक में, जिसके पैसे बैंक में पड़े होते हैं। ये क्या करता है? ये बैंक को ऑर्डर करता है
बैंक को हम ड्रॉई कह देते हैं। एंड देन जो बैंक है वो पेई को इसके ऑर्डर पे पैसे दे देता है। जब भी पेई इसको प्रेजेंट करेगा चेक या बेरर प्रेजेंट करेगा तो ये पैसे उसको मिल जाएंगे। देन वी टॉक्ड अबाउट अगेन कि व्हाट इज चेक, तो हमने कहा कि इट इज अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस नो अबाउट इट, यूज इट, our parents use it, and we have a very clear about idea about this negotiable instrument. Promissory note और bill of exchange हमने जरा कम देखे होते हैं. So if you have a saving account or a current account, both can be used, and आपने predetermined amount जो है वो किसी एक इंडिविजुअल के नाम पे आप चेक लिख देते हो या उसको ओपन चेक रखते हो तो वो उसमें से पैसे निकाल सकता है. We need to be very careful because बहुत सारे बैंकिंग फ्रॉड जिसमें मैंने आपको कुछ बातें बताई भी, many banking frauds and check frauds are possible, तो इसलिए बड़ा आपको केयरफुली ये हैंडल करनी पड़ती हैं चीजें. Then we talked about it is the safest form of making payments and can only be transferred by mere delivery, which means that if you pass on one check from one person to the other person, the rights are also transferred. And one of the benefits of check is that you can transfer a high value transaction without the hassle of carrying a lot of cash. So एक ही आपके पास वो चेक सिंपल पेपर होता है जिस पे आप लिख देते हो, द अमाउंट कैन वेरी, और वही कैरी करना पड़ता है, ज़्यादा इशू नहीं होते. You need to have the saving or current account in the bank with which you are connected to order the bank कि इसमें से इतने पैसे जो हैं आप दूसरे लोगों को दे दें. Then we talked about this the important details that can be mentioned, that it should be dated. तो हमने कहा यहाँ डेट होती है, that इसका जो मनी इन फिगर एंड वर्ड्स होना चाहिए कि कितना अमाउंट आप पे करना चाह रहे हो, वो दोनों की स्पेस है हमारे पास. Here you are going to write the figure and here you are going to write the rupees in or the dollars or whatever currency you're using in words. And then we talked about it should be signed or endorsed, which is here. Then we talked about that there must be an order to the bank, और बैंक ने जो है वो अपना नाम और सारी चीजें ऑलरेडी प्रिंट की होती हैं. And then we said if you want to write a name of the person to whom you are paying this money, you can place it here, or otherwise if you're not placing anything here, it will be considered as the bearer. जिसके पास भी होगा वो उसका right create हो जाएगा. Then we talked about these types of checks and started off with bearer checks कि ये open checks होते हैं. इसमें obviously date and ये सारी चीजें तो mention होती हैं, but यहाँ पेई का नाम नहीं लिखा होता, and anyone can encash it. Then we talked about this self check कि जब आप अपने आप को चेक लिख रहे होते हो and बैंक से ये ऑर्डर करते हो कि मुझे इतने पैसे मेरे अकाउंट में से दे दें, that is known as self check. Then we talked about a very important form of the check, that is accounts payee. Accounts payee का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ उसके अकाउंट में ही पैसे जा सकते हैं. And then how do we make this any check an account payee check? By putting two parallel lines on the left hand top corner of the check, and इसको crossed check भी कह देते हैं because ये क्रॉस किया होता है इधर से. एंड अंडरस्टैंडिंग इज दैट इस पे आप कैश नहीं ले सकते, इस पे सिर्फ और सिर्फ आपको आपके अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं. देन वी हैव दीज पोस्ट डेटेड चेक्स. पोस्ट डेटेड चेक्स क्या हैं? जिसमें आप कोई एक सर्टन डेट लिख देते हो कि इस डेट से पहले ये इन कैश या ट्रांसफर नहीं हो सकते. देन वी टॉक्ड अबाउट दीज क्रॉस चेक्स कि आप ऑब्वियसली जिस तरह पहले भी हमने देखा कि इसको क्रॉस कर देंगे तो अकाउंट्स पे ही चेक बन जाएगा. एट द सेम टाइम अगर नाम लिख देंगे तो सिर्फ उसी नाम में सबमिट हो सकते हैं पैसे उसी नाम के अकाउंट में. समटाइम्स पीपल आल्सो राइट द अकाउंट नंबर हियर, इस अकाउंट नंबर के अलावा किसी में ट्रांसफर ही ना हो. सो क्रॉस चेक ज्यादा सबसे सेफ है अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स. देन वी टॉक्ड अबाउट दिस मैच्योरिटी पीरियड के अगर जो डेट भी मेंशन्ड है उससे 180 डेज के अंदर अंदर अगर आप इसको करवा लेते हैं कैश तो ठीक है. 90 डेज के अंदर भी कुछ लोग इसको वो कह रहे होते हैं कि 90 डेज में आप इसको इन कैश करा लें. वो सर्टन उस पे रूल्स पे डिपेंड करता है कि जो भी
उस स्टेट के लॉज हों. Then we talked about the dishonor of check. It is a condition in which bank refuses to pay the amount of check to the payee. जिसमें हमने कहा कि क्यों होता है. There might be different reasons. उसमें वो कैश रिटर्न मेमो जो है वो साथ लगा देते हैं और उसमें रीज़न जो है वो मेंशन कर देते हैं. इस पे हमने काफ़ी डिटेल में ये भी बात की कि बहुत दफ़ा फ्रॉड्स जो हो रहे होते हैं वो इसी तरह जो है वो चेक के फ्रॉड्स हो रहे होते हैं. एंड अगर कोई ऐसा बंदा फ्रॉड करता है और आप चेक रिटर्न मेमो लेके उस पर एफआईआर कटवा देते हैं, so it has become recently, about I think 10 to 15 years back, it has become a non-bailable offense in Pakistan. So आपकी बेल नहीं हो सकती अगर आपने ऐसा कोई फ्रॉड किया हो, अनलेस आप उसको कोर्ट में चीज़ें सेटल नहीं कर लेते. So this is all about our negotiable instruments. We have only covered the basics. So there are other details, but unfortunately we cannot cover other details in this course. So see and study it from other places as well. And if you have any questions, talk to me in class. Thank you very much.